Okay, I thought we'll pray before we start. और आइए हम प्रार्थना करेंगे शुरू करने से पहले। Father, I thank you for your word. परमेश्वर हम आपके वचन के लिए धन्यवाद I देते pray हैं। that this morning, as we hear this topic, worship, और इस सुबह जब हम इस टॉपिक को सुनते हैं जो है आराधना, I pray that sweet incense will arise. और हो सके वो जो इत्र है जो मधुर है वो उठने वाला हो सके। I pray that your spirits will give us patience as we hear the word. और आपका जो आत्मा है वो हमें संयम देगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। And I pray that your name will be glorified through it all. और हो सके सिर्फ आपके नाम को महिमा ले इन सब से। Amen. आमीन। Okay, so worship is the sermon title, and our series is called God's Way. और जो आराधना है वो हमारे सरमन का विषय है और जो हमारी श्रृंखला है वो है परमेश्वर का तरीका। If God is not in the center of our lives, अगर परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र नहीं है, our actions, हमारे जो कार्य हैं our lifestyle और हमारे जीवन शैली है would represent वो क्या दर्शाएगी? someone क्या कोई व्यक्ति or something या कोई चीज that we admire जिसके बारे हम सोचते or हैं follow on this earth. या जिसके पीछे हम चलते हैं इस पृथ्वी पर। I'll let you think about that for a minute, okay? और मैं आपको थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने दूंगी You behold कि आप किसकी ओर देखते हैं, what you gaze upon. जिसको आप निहारते हैं। The more I look at Instagram, जितना मैं इंस्टाग्राम को देखूंगी and the more I look at reels on और Instagram, जितना मैं रील्स को देखूंगी the इंस्टाग्राम पे, more I look at other moms on Instagram that do things for their kids on Instagram, अगर मैं उन माताओं को देखूंगी इंस्टाग्राम पे जो अपने बच्चों के लिए चीजें करती हैं, the more time I spend doing that, और अगर मैं और समय उसमें बिताऊंगी the more I'm going to be gazing upon that. और मैं उससे ज्यादा उस पे निहारती रहूंगी, The more I'm going to be thinking about, oh yeah, I should try that, I should do this. I start comparing myself, oh, maybe I need to do this, I'm not good enough, and everything starts creeping in. और अगर देखूंगी अरे वो ऐसा करती है वैसा करती है और अपनी तुलना करूंगी और मैं सोचूंगी कि मैं काफी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ इन सब में। And so it is true that you become what you behold. और आप वही बनते हैं जिसकी ओर आप देखते हैं, You become what you gaze upon, आप वो ही बनते हैं जिसको आप निहारते हैं। right? Young people, we have a challenge in today's world. और जवान लोगों के लिए एक संघर्ष है आज की दुनिया I में। was thinking when I was small, I didn't have all this extra media and things like that. और जब मैं छोटी थी तो ये इतना मीडिया और इतनी सारी चीजें नहीं थी हमारे पास, Life was little simpler. और हमारा जो जीवन था थोड़ा I आसान mean, we था। had probably one girl in school that was probably the most famous girl or और something. शायद हमारे जो क्लास में सिर्फ एक ही लड़की होती थी जो सबसे ज्यादा प्रचलित होती थी, And then some of us inspired to be like her. और हम में से कुछ बहुत ही प्रेरित होते थे कि हम उसके जैसे बने। Oh, we had one guy that everyone in school was talking about. और एक लड़का था जो जब स्कूल में जिसके बारे में सब बात करते थे, And then every girl would be talking about this और one हर person. लड़की उस लड़के के बारे में बात करती थी। Those were our problems. वो हमारा संघर्ष था। But today's problems are bigger. और आज का संघर्ष Right? उससे भी बड़ा है, We have so many challenges. और हमारे पास बहुत सारे संघर्ष हैं। So, in other words, you become like the person, or you become like the thing you gaze upon. और जिस चीज या जिस व्यक्ति को आप निहारते हैं आप उसके जैसे बनते चले And जाते so, हैं। worship तो जो आराधना है takes many forms in cultures, in societies, in communities, in the world. हमारी दुनिया में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में दुनिया बहुत तरीके का रूप है आराधना का। The word worship in Hebrew is called hishtoba. I might say this wrong. और जो इब्रानी है उसमें वर्शिप को इस्तोबा बोलते हैं। Okay, it occurs 171 times in the Bible, in the और- Old Testament. और वो 171 टाइम्स पुराने नियम में आता है, 164 times it's translated into a Greek word called proskuneo. और Now- 164 टाइम्स वो ग्रीक में अनुवाद किया गया उसका, जिसको हम कहेंगे प्रोस्कुनाओ, Okay, and it means to bow down. और इसका अर्थ होता है कि किसी के आगे झुकना, It means to prostrate yourself before God. कि किसी के सामने आप खुद को झुका देते हैं। In the gospel, this word worship occurs 26 times.
और जो सुसमाचार है उसमें 26 बार इस शब्द का इस्तेमाल It हुआ है। means to fall down before God. और इसका मतलब है कि परमेश्वर के सामने गिर जाना। In the book of Revelation, it occurs 21 times. 21 times in the whole book. और एक किताब जो है प्रकाशित वाक्य, उसमें अकेले वो 21 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। So you see how important worship is to God. तो आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण आराधना है परमेश्वर के लिए। When we look at the New Testament, और जब हम नए नियम में देखते हैं Jesus treated worship differently from the Old Testament. तो यीशु मसीह ने आराधना को अलग तरीके से लिया जैसा कि पुराने नियम में था उसकी तुलना में। His outworking of worship transformed the way the early church thought about it. और जिस तरीके से वो आराधना को देखते थे उसने बिल्कुल बदल दिया नए कलीसिया के आराधना करने के तरीके He को। modeled what New Testament worship should be. और वो दिखाना चाहते थे कि नए नियम की जो आराधना है वो कैसी होनी You चाहिए। see, in the Old Testament, we always read about the tabernacle. और जब भी हम पुराने नियम में पढ़ते हैं हम तंबू के बारे में सुनते We हैं। always read about a place the Israelites had to gather to. और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इजराइलियों को समूह में आना पड़ता था। Okay? We always read about preparation that needed to be done to get to this place of worship. और हम उन तैयारियों के बारे में बात करते हैं जो की जाती थी उस आराधना की जगह में इकट्ठा होने के लिए। So, what is the change in the New Testament? तो क्या चीज़ बदल गई नए नियम में? Jesus says that true worshippers would worship him in spirit and in truth. और वचन में ऐसा मसीह कहता है कि जो सच्चे आराधक हैं वो आत्मा और सच्चाई में आराधना देंगे। In spirit, carried by the Holy Spirit. और आत्मा में जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा लाया जाएगा। It's what worship happens within my heart. इसका मतलब है जो आराधना है वो मेरे हृदय के अंदर चल By रही है his spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, through his spirit. उसके आत्मा के द्वारा। And then in worship, which is a response और जो आराधना है वो एक प्रत्युत्तर है to the true view of who God is. कि हम उस सच्चे दृश्य को देख सके कि परमेश्वर है कौन। So when we see Jesus in the Old Testament around the temple, और हम सिर्फ यीशु मसीह को देखते हैं जो मंदिर के आसपास रहते थे पुराने नियम में। I mean, you may recall नए that नियम में। you may recall that actually he had a whip, और आपको याद होगा कि वो एक कोड़ा लेकर आए थे। right? He whipped some of the people. He whipped some of the tables out there in anger. और उन्होंने गुस्से में कुछ जो मेज हैं उन पर उस कोड़े को मारा। He was preaching outside in the temple courts. और वो जो क्या कहते हैं मंदिर के आंगन था उसमें वो प्रचार करते थे। And he said this, my house will be called the house for all nations. और वो ऐसा कहते हैं कि जो मेरा भवन है वो सारे राष्ट्रों के लिए, सारे देशों के लिए एक भवन कहलाया जाएगा। So Jesus is talking about worship in a new way. तो यहाँ पे यीशु मसीह एक नए तरीके की आराधना के बारे में बोलते He's हैं। talking about communion, और वो संगति के बारे में बात कर रहे हैं relationship और रिश्ते के बारे में बात कर रहे with हैं। God in prayer और वो है प्रार्थना में और वचन in the में, New Testament. नए नियम में। Okay? Matthew 12 verse 6. I'm not going to go there, but it says, someone greater than the temple is here. और मत्ती 12 उसके 6 में वो ऐसा बोलते हैं कि कोई जो इस मंदिर से भी बढ़कर है वो यहाँ पर है, I am here. कि मैं यहाँ पर हूँ। John 2 verse 19 says, destroy this temple and I will rebuild this temple in 3 days. और यूहन्ना 2:19 में ऐसा कहता है कि तुम इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन में इसे फिर से बना के खड़ा So कर what दूंगा। do these statements mean? तो इन वाक्यों का मतलब है क्या? The Old Testament और जो पुराना जो नियम है and the old ways of worship और जो पुराने तरीके हैं आराधना के, focused on what was on the outside. वो इस पे केंद्रित है कि बाहरी तौर पे क्या चीज। But Jesus is now talking about what's going to be on the inside of पर us. यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि अंदर क्या चीज है। Okay, so I'm going to explain further as we go into John 4. और जब हम यूहन्ना 4 में जाते हैं
Okay, this is the story about the Samaritan woman. और ये उस सामरी स्त्री के बारे में कहानी है। A woman from Samaria came to draw water. और एक सामरी स्त्री पानी निकालने आई। Jesus said to her, "Give me a drink." और यीशु मसीह ने उसने कहा कि मुझे पीने को कुछ दे। The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet." और वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि आप एक भविष्यवक्ता हो। Our fathers worshipped और हमारे जो पिता थे वो आराधना करते थे। proskunao, the Greek word for worship, और उन्हें शब्द यहाँ इस्तेमाल किया है प्रोस्कुनाओ, on this mountain. But you say that in Jerusalem is the place where people ought to go. और वो कहते हैं कि इस पर्वत पर हमारे पूर्वज आराधना करते थे, पर आप कहते हो कि हमें यरूशलेम जाने की जरूरत है So आराधना the करने के woman लिए। is asking Jesus, don't the Jews say you need to go to the temple, you need to go to that, the place of worship? और वो ऐसा पूछते कि आप लोग नहीं मानते कि यहूदी लोगों को यरूशलेम यानी कि उस मंदिर, उस जगह पर जाने की ज़रूरत है जहाँ हमें आराधना करनी चाहिए। Now in Israel, the north part of Israel was conquered by an Assyrian king. और जो बहुत सारा हिस्सा था यहूदी देश का वो एक एनेसरिन राजा के द्वारा ले लिया गया था। So the north side got left behind. Now Assyrian Empire came and ruled the north side. There were few Israelites left there and they were very poor. So what happened was they married some of these people from that empire and religion and culture got mixed. और ये सारी चीज़ें होने की वजह से कि उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था, कुछ गरीब इजरायली रह गए थे जिन्होंने दूसरे देश के या दूसरी जगह के लोगों से शादियां कर ली थी। So the conversation between the woman and Jesus, तो जो ये वार्तालाप हो रहा है उस स्त्री और यीशु मसीह के बीच में, she's asking questions from what she understands. वो वहाँ से प्रश्न पूछ रही है जहाँ तक वो समझती है, Right? And Jesus is answering her. और यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं। Okay? So the Samaritan woman would have known the 10 commandments. तो जो सामरी स्त्री है उसको 10 आज्ञाएं पता होंगी, But they are not Jews पर वो यहूदी नहीं थी at this point. इस So समय पे। Jews had the tabernacle, had the covenant, had the temple, had the laws given to them. They were the chosen people, right? और यहूदियों के पास वो तंबू था और वो मंदिर था और आज्ञाएं दी गई थी, वो चुने हुए लोग थे। And the Samaritans, they were like, yeah, we believe in that God. और जो सामरी लोग थे वो कहते थे हाँ हम उस परमेश्वर में विश्वास करते We've हैं got to follow what that God says. और हमें मानना पड़ेगा जो वो परमेश्वर कहता We है। are half Israeli. हम सिर्फ आधे यहूदी हैं। Okay, so this is the conversation that's going on. और Now, ये बातें यहाँ चल रही थी। so the discussion is showing that actually there is a different view of worship that this woman has. और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो उस स्त्री का नजरिया है आराधना को लेकर वो थोड़ा अलग था। Okay? Now, the first 3 commandments तो जो पहली 3 आज्ञाएं हैं tells us who we are to worship, हमें ये वो बताती है कि हमें किसकी आराधना how we are करनी to है worship the और हमें Lord, कैसे आराधना करनी है and what is our responsibility to और worship. हमारी जिम्मेदारी क्या है आराधना Right? को लेकर। So the first commandment states who we are, and God spoke these words, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. तो Exodus यहाँ 20. पे परमेश्वर बताते हैं कि हम कौन है परमेश्वर की, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया हूँ और तुम मेरी आराधना करो। So who are we to worship? We are to worship the Lord. Which Lord? The Lord that brought the Israelites out of Egypt, right? और हमें किसकी आराधना करनी है? हमें उस परमेश्वर की आराधना करनी है जो यहूदियों को, इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया था। The second commandment addresses how the Lord our God should be worshipped. और जो दूसरी आज्ञा है वो बताती है कि हमें कैसे अपने परमेश्वर को आराधना देनी है। There is no visual picture representation here. और यहाँ पे कोई भी दृश्य या कोई भी पेंटिंग या कुछ नहीं दिया गया कि हमें कैसे आराधना देनी है। It says in Exodus 20:4-6, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is underneath the earth, or that is in water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God,
और वो ऐसा कहता है कि तुम्हें अपने लिए कोई मूर्ति खोद के नहीं बनानी, ना कोई चीज़ अपने हाथों से बनानी, ना जो किसी चीज़ की तरह दिखती हो जो स्वर्ग में है या क्या कहते हैं पृथ्वी के नीचे है या पानी में है, और तुम उनके आगे ना झुकोगे, ना उनकी सेवा करोगे, ना उनको आराधना दोगे। So how do we worship him? तो हम कैसे उसको आराधना Not दें? looking at the things on the earth. हम उन चीज़ों को देखकर आराधना दें जो पृथ्वी पर हैं, We are to acknowledge what he has done. बल्कि हमें उस चीज़ को मानना है जो उसने हमारे लिए की है। The third command lays out clearly the responsibility of humans. और जो तीसरी आज्ञा है वो हमारी जिम्मेदारी है एक मनुष्य होने के Okay, नाते। and it says, you shall not take the name of the Lord your God in vain. और कहता है कि तुम व्यर्थ में अपने परमेश्वर का नाम नहीं लोगे। Okay, the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. और परमेश्वर उन्हें निर्दोष नहीं मानेगा जो उसका नाम व्यर्थ में लेते हैं। This is what was in the commandment that the Israelites had to follow. और ये उन आज्ञाओं में थी जो इजरायलियों को माननी थी। Okay, and our responsibility according to these laws was to not use the name of the Lord in vain, and I'm going to explain more of that. और हमारी जिम्मेदारी ये है इसमें कि हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। The Samaritans also knew this and heard this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your might. और वो सामरी लोगों को ये बोलते हैं कि हे इज़राइल सुन, मैं परमेश्वर हूँ और जो एक हूँ, और तुम परमेश्वर से प्रेम करो अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरी सामर्थ से, और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें आज्ञा के तौर पर देता हूँ। Even after knowing all this, the Samaritan woman was still wondering what this worship was about. और ये सारी आज्ञा मिलने के बावजूद भी वो सामरी स्त्री ये सोच रही थी कि आराधना है किस बारे में। Okay, so now there are 3 commandments there, but there is still a misunderstanding. और यहाँ पे 3 आज्ञाएं हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी गलत फहमियां हैं। John 4:22 says, "You worship what you do not know." Jesus tells her, "You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews." और यूहन्ना 4:22 में ऐसा कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते जिसकी तुम आराधना करते हो, पर हम जानते हैं हम किसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। So she heard, but she didn't know who she was worshiping. तो उसने वो सुना पर उसे नहीं पता था कि वो आराधना करती किसकी है। The Jews too failed to observe God's commands. They didn't fully obey it. और यहूदी लोग भी असफल रहे वो सारी आज्ञा को मानने से, वो सारी आज्ञा नहीं मान सके। They also worship God falsely. और उन्होंने भी गलत तरीके से परमेश्वर को आराधना दी। So I want to ask you, we all know this commandment, love the Lord your God with all our heart. We all know. If I ask anyone around the room, they're going to give me 5 things we could do to love the Lord our God with all our heart, with all our mind, with all our soul. और अगर मैं ये सारी चीज़ें आपसे पूछूं, हम सबको पता है कि हमें परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे सोच से, अपने पूरी सामर्थ्य से प्रेम करना है। I can hear some answers like read your Bible. और मैं कुछ जवाब सुनूंगी कि अपने बाइबल को Pray when you need Jesus. और आप प्रार्थना करो जब आपको यीशु मसीह Put की जरूरत। Jesus first in everything. और यीशु मसीह को सबसे ऊपर रखो Right? हर एक That's चीज़। how we're going to love the Lord our God, और right? ऐसे हम अपने परमेश्वर से प्यार करेंगे, सही? But what is worship not? What is not worship? पर हमें आज जानना है कि आराधना क्या नहीं है, Or rather, what is vain worship? और क्या है व्यर्थ आराधना। Okay, so vain means empty. और व्यर्थ का मतलब है खाली। It is something that doesn't have a good purpose. और ऐसी चीज जिसका कोई अच्छा उद्देश्य होता ही नहीं है। When you take the Lord God's name in vain, just like, oh God, और जब आप ये परमेश्वर का नाम यूं ही लेते हैं ऐसे कह के कि अरे परमेश्वर, you reduce the meaning. आप उसके अर्थ को और छोटा कर देते Or हैं, you make it superficial to people. और आप बस ऊपरी तौर से ही दिखाते हैं। What is of glory is now unglorified when we use the Lord God in vain. जो चीज महिमा पाने की है, अब हमने उसकी महिमा छीन ली है क्योंकि हम उसे व्यर्थ में बोल रहे हैं। So one thing that is not worship is to blaspheme the name of the Lord. और जो चीज जो आराधना नहीं है वो है परमेश्वर के नाम को गलत प्रकार से लेना। Blasphemy means to show disrespect to God. और ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि परमेश्वर का अनादर करना, Or to something that is holy, to show disrespect.
और कोई चीज जो पवित्र है आप उसका अनादर करते हैं। This is to accuse God. Some of us can say, "Oh, what is this God? He's so much of evil, so much of rape in this world. But where is this God?" और This हम is God. कहते हैं कि हम कभी कभी कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, यहाँ पे इतनी बुराई फैल चुकी है दुनिया में, इतना सारी दुष्टता फैल चुकी है, परमेश्वर कहाँ है? What is the attribute of God? पर परमेश्वर का चरित्र क्या है? He's omnipotent. कि वो हर जगह मौजूद है, He's omnipresent. वो सर्वशक्तिशाली है, वो हर जगह Can he be मौजूद है। absent in a world of suffering? और Can he be absent in a world of suffering? क्या वो उपस्थित नहीं होगा उस दुख भरी दुनिया के बीच में? So when we say, "Oh, God's not here," we're blaspheming the name of God, and that isn't worship. और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर नहीं है तो हम परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। You can't call God unholy आप परमेश्वर को अपवित्र कह सकते when हैं his very nature is holy. जब आपको पता है कि उसका चरित्र ही पवित्रता है। Leviticus 24 says, और "And लय व्यवस्था उसका 24 ऐसा कहता है, speak to the people of Israel, saying, Whoever curses his God shall bear his sin. Whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death." और वो ऐसा कहता है कि इज़राइल के लोगों से बोल कि जो परमेश्वर को श्राप देगा वो उस पाप का भागी होगा, और जो उसके नाम की निंदा करेगा वो उसको ज़रूर से मृत्युदंड दिया The जाएगा। God we worship does not like to be blasphemy. और जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसे नहीं पसंद कि It आप is उसकी not निंदा worship करें, when we do that. और ये आराधना नहीं है जब हम उसकी निंदा करते Okay, हैं। the second thing is when we swear falsely, और जब हम झूठी सौगंध खाते हैं, when we make false promises. और जब हम झूठे वादे करते हैं, You shall not swear by my name falsely and so profane the name of the Lord. और तुम परमेश्वर के नाम के विरुद्ध बोलकर परमेश्वर के नाम के विरुद्ध बोलकर उसके नाम को की बुराई नहीं करना। Okay, it's like lying in the name of the Lord. इसका मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं परमेश्वर के नाम पे। Okay, we hear this phrase. Some of us, I remember when I was at school, we'd say, "Oh, I swear I didn't do it." और हम जब स्कूल में था तो लोग ऐसे बोलते थे, अरे मैं सौगंध खाता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, I swear by God, I swear by God, I never और did मैं it. परमेश्वर की सौगंध खाता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। But if there is an ounce of a lie, पर अगर उसमें थोड़ा सा भी झूठ मिला है it becomes vain worship. तो वो एक व्यर्थ आराधना बन जाती है। Okay? Speaking for God falsely, making false claims. और परमेश्वर के बारे में झूठी बातें बोलना। Be careful of this church. और आप इस कलीसिया से बचकर This रहें। is very rampant in the online age right now. और ये जो ऑनलाइन एज है उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मानी Look जाती at हैं। God's words. Do not listen to the words of the prophets who prophesy to you. और उन भविष्यवक्ताओं की बातों को ना सुनो जो भविष्यवाणी करते हैं, Filling you with vain hopes. कि वो आपको व्यर्थ आशा से भरते हैं। They speak visions of their own minds, और वो ऐसे not दर- from the mouth of the Lord. और वो अपने मन से दर्शनों को बताते हैं, ना कि परमेश्वर के मुंह से आते हैं वो। For who among them has stood in the counsel of the Lord to see and hear his word? उनमें से कौन है जो परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा हुआ है कि उसके वचन को देख और सुन सके। Okay, I'm not going to read further, but this is something for all of us to be very cautious about. और ये हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें। We shouldn't profess things that sound accurate और हम उन चीज़ों को ना बोले जो सही लगती तो है सुनने में, but are not word based. पर वो वचन के अनुसार नहीं है। Okay? We shouldn't sugarcoat the Lord's words. और हमें परमेश्वर के वचन को चिकनी चुपड़ी बातों की तरह नहीं बताना The है। prosperity gospel. और जो प्रोस्पेरिटी का We're सुसमाचार है, not called to suffer. और हमें क्या कहते हैं, We're परेशानियों को, called to receive blessing over blessing, हम increase and परेशानियों increase. से जूझने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हमें सिर्फ आशीष और आशीष के लिए बुलाया गया है। You see, preaching is also an act of worship, by the way. और जो प्रचार है वो भी परमेश्वर की आराधना And करने if का एक तरीका है। I don't speak the truth, और अगर मैं सत्य ना बोलूं I am accountable to God. तो मैं परमेश्वर को अपना लेखा दूंगी। Prophetic words और जो भविष्यवाणी के शब्द हैं come when we are worshiping God. वो तब आते हैं जब हम परमेश्वर को आराधना देते हैं। Prophetic people
जो लोग भविष्यवाणी करते or हैं rather, let me just say, the church can hear the voice of God और जो कलीसिया है वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकती है, when we are worshiping God, वो तभी सुन सकती है जब वो परमेश्वर को when we आराधना are दे रहे giving Him and offering ourselves to Him. और जब हम अपने आप को उसके लिए दे रहे हैं, उसकी आराधना के Would you लिए। raise your hand and tell me you heard the voice of the Lord, or what the Lord was saying to you when you were in a time of worship where you were talking to God or praising Him? If अगर you आप did ये that, could you बोलते raise हैं- your hand? और अगर आप आमीन बोल सकते हैं, अगर आप आराधना करते समय परमेश्वर से आपने सुना है, परमेश्वर आपसे बात करता है जब आप उसे आराधना दे रहे होते हैं। Yeah, most of us. और हम में से कई ऐसे हैं। I remember when I was in university, और मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में थी and I wanted to know what was God's will for my life. और मैं जानना चाहती थी कि परमेश्वर की इच्छा है क्या मेरे जीवन के लिए। And I had all these interests, like I wanted to work with youth, and I wanted to help young people. और मैं ये सारी चीज़ें बहुत पसंद करती थी कि मैं जवानों के साथ कार्य करना चाहती हूँ, मैं मदद करना चाहती हूँ जवान लोगों की। But I didn't know how this was going to work out. पर मुझे नहीं पता था ये कैसे कार्य I करेगा। went into my room मैं अपने कमरे में गई and I just prayed. और मैंने प्रार्थना I करी just worshipped. और मैंने आराधना दी I just declared who God is. और मैंने घोषणा की कि I परमेश्वर है expressed कौन, my desire to God. और मैंने अपने इच्छाओं को परमेश्वर को बताया। In a week's time, I met with the senior worship leader. और Senior youth leader. और एक हफ्ते के समय में मैं एक सीनियर यूथ लीडर से मिली He said, we'd really like for you, Tressa, to come and serve the youth. और उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप आके जवानों के बीच में सेवकाई करें। Did I hear God? क्या मैंने परमेश्वर की सुनी? I did. हाँ, मैंने सुनी Yes, He put that desire in my heart. और उसने वो इच्छा मेरे मन I में रखी थी expressed to Him. और मैंने उसके आगे उसे व्यक्त He किया confirmed to me. और उसने उस चीज़ को सिद्ध किया। If someone prophesied in that moment, they would have prophesied along the same lines, because it was a moment where we were seeking and offering up myself to God. अगर कोई भविष्यवाणी भी करता तो वो इन्हीं शब्दों के साथ करता, क्योंकि मैं परमेश्वर को खोज रही थी उस समय में। And the words would be accurate. और जो शब्द थे होते वो भी बिल्कुल सही होते। But be careful of पर- words that do not come or line up with the word of God. पर आप चेतक रहे उन बातों से जो परमेश्वर के वचन से नहीं आती हैं। Okay, worship is not disrespectful. और जो आराधना है वो अनादर से भरी नहीं होती है। Now Aaron was a priest और जो हारून है वो एक याजक था in the Old Testament, पुराने नियम में, and his family was not handling the articles of worship properly. और जो उसका परिवार है जो आराधना की चीज़ें थी उनको सही से उसका ख्याल नहीं रखते थे। And God says to them, if any one or all of your offspring throughout your generations approaches the holy things that the people of Israel dedicate to the Lord, while he has an uncleanliness, that person shall be cut off from my presence. वो कहता है कि अगर तुम्हारे परिवार या तुम्हारे पीढ़ी में से कोई ये सारी पवित्र चीज़ें जो इज़राइल के लोगों के लिए दी गई हैं, अगर उसको अशुद्धता के साथ लेकर इस्तेमाल करता है तो वो मेरी उपस्थिति से हटा दिया जाएगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। When you come here to church on Sunday morning, we have an order. और जब हम संडे की सुबह इस कलीसिया में आते तो हमारा एक ऑर्डर होता है। Our worship team has an order. हमारी जो वर्शिप टीम है उनका एक ऑर्डर होता Right? है। They have practice. They come here Sunday morning. They have a prep time. They have so many things in line. और वो प्रैक्टिस करते हैं, वो सुबह आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी होती हैं। Yeah, but worship is not disrespectful. पर जो आराधना है वो अनादर की चीज़ नहीं है। We don't mishandle the responsibility the Lord has given us. हम उन जिम्मेदारियों को गलत तरीके से नहीं लेते हैं जब हमें दी जाती हैं। Worship is not loud prayers made by people for other people to hear. और ना ही आराधना वो क्या कहते हैं ऊंची आवाज में की गई प्रार्थना है कि दूसरे लोग सुन सकें। Okay, Isaiah says this, these people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. और वो ऐसे कहता है कि ये लोग अपने मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं पर इनके हृदय मुझसे दूर हैं। Jesus quotes this in Matthew 15 verses 7 to 9. He's talking about the Pharisees. और वो मत्ती 15 में 7 से 9 में ऐसा बोलता है, वो यहाँ फरीसियों की बात कर रहे हैं। The Pharisees knew everything about the 10 commandments. और जो फरीसी हैं उन्हें हर एक चीज़ पता थी उन 10 आज्ञाओं के बारे में। But worship was not the utterances of loud prayers. पर जो आराधना है वो ऊंचे शब्द में बोली गई प्रार्थनाएं नहीं हैं।
Worship is not self-seeking. और ना ही आराधना है खुद के बारे में It's कुछ not ढूंढना। about what I can get from God. और इस बारे में नहीं कि मुझे क्या मिल सकता है Okay, परमेश्वर if से, you do this for me, then I'm sure I'll do this for you. कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो जरूर मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। Worship is not that, you just come and you just leave because you gain something. और आप आराधना ये नहीं कि आप आते हैं और चले जाते हैं क्योंकि आपको कोई चीज मिल रही है। So how then should we worship? तो हमें कैसे आराधना करनी चाहिए? How then should we worship? हमें कैसे आराधना करनी चाहिए? Now, I lost the scripture verse. Do you know what scripture verse that is? Psalm 24. Oh, Psalm 24. It says, "Who shall ascend to the hill of the Lord? और ऐसा कहता है यहोवा के पर्वत पर कौन जा सकता है? Who shall stand in his holy place? और उसके पवित्र मंदिर में कौन खड़ा हो सकता है? He who has clean hands ऐसा जन जिसने पाप नहीं किया and है, a pure heart, और ऐसा जन जिसका मन पवित्र है, who does not lift his soul to what is false, और वो ऐसा जन जिसके मेरे नाम का प्रयोग झूठ को सत्य प्रतीत करने में ना किया हो, and does not swear deceitfully." और ऐसा जन जिसने ना झूठ बोला और ना ही झूठे वचन दिए हैं। If you want to worship God, बस अगर आप परमेश्वर को सच में आराधना देना चाहते if you हैं, truly want to worship God, अगर आप सच में उसे आराधना देना चाहते हैं, you need salvation. आपको उद्धार पाने की जरूरत Does है। anyone have a pure heart? क्या कोई है जिसका मन साफ हो? Who can stand in a holy place? कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है? We need clean hands and pure hearts. हमें अपने साफ हृदय और साफ हाथों की जरूरत है। How can our hearts be pure? और हमारे हृदय कैसे निर्दोष हो सकते हैं? We need to revere, we need to respect God and not anything else. हमें परमेश्वर को आदर देने की जरूरत है, ना कि और किसी चीज को। No vain worship. कोई भी व्यर्थ आराधना नहीं देनी We है। are all in need of salvation this morning. और हम सबको इस सुबह उद्धार की जरूरत है। Romans 3:23, all have sinned. और रोमियो 8 ऐसा कहता है कि सबने पाप किया है All have fallen short of the और- glory of God. और सब उसकी महिमा से चूक गए हैं। Jesus answered the woman, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." और यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, अगर तुझे पता होता परमेश्वर का वो वरदान और कौन है जो तुझसे पीने को पानी मांगता है, तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। "Sir," the woman said, और "you, कहती है, स्वामी, you have nothing to draw with and the well is deep. वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई बर्तन नहीं है पानी निकालने को और जो कुआं है वो गहरा है। Where can you get this living water? वो कहते हैं तो ये जीवित जल हम कहाँ से पा सकते Are हैं? you greater than our father Jacob, क्या तुम हमारे पिता याकूब से बढ़कर हो, who gave us this well and Yes. drank it for himself?" और जिसने हमें ये कुआं दिया और उसमें से खुद पिया? This well that the Samaritan woman was at was built by Jacob. और जो ये कुआं है जहाँ पे सामरी स्थिति, ये याकूब के द्वारा बनाया गया Jacob था, in the Old Testament, right? जो कि याकूब है पुराने नियम का, It was a valuable place in Samaria. और वो बहुत ही कीमती जगह थी उन सामरी लोगों के लिए। Jews used it too, but Samaritans and Jews would not use it at the same time. और यहूदी भी उसका इस्तेमाल करते थे, पर यहूदी और सामरी लोग एक साथ उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। Okay? Jesus answered the woman, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. और यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि हर कोई जो इस पानी में से पिएगा फिर से प्यासा होगा, But whoever drinks the water I give them will never thirst. तो कहते हैं, वो जल जो मैं देता हूँ उसे जो पिएगा वो फिर से प्यासा ना होगा। The water I give them will become in them a spring of water welling up till eternal life." कहना जो जल मैं उन्हें दूंगा वो उनके अंदर एक ऐसा सोते की तरह फूट निकलेगा जो अनंत का जीवन देता है। We are all in need of salvation. और हम सबको उद्धार की जरूरत है, Salvation is a gift from God. और जो उद्धार है वो परमेश्वर की ओर से It's एक free. उपहार है, वो मुफ्त है। To the woman, she had to believe to receive it. पर उस स्त्री के लिए उसे विश्वास करने की जरूरत थी उसे ग्रहण करने के लिए। You know, in verse 26, Jesus even tells her, "It is I who I'm talking about." और 26वें वचन में यीशु मसीह ये तक बोलता है कि मैं ही वो हूँ जिसके बारे में बात कर रहा You हूँ, need me, Samaritan woman. कि तुम्हें मेरी जरूरत है सामरी स्त्री। True worship is only possible
और सच्ची आराधना सिर्फ तभी हो सकती है when we believe जब हम विश्वास करते हैं that Jesus died for our sins. कि यीशु मसीह हमारे That- पापों के लिए मरे He is the only holy one who can save us. और वो ही सिर्फ वो पवित्र जन है जो हमें बचा सकता है। He was broken and bruised. उसे तोड़ा गया, उसे चोट पहुंचाई गई He was nailed to a cross. और उसे क्रूज पर उसका कील ठोकी He गई became sin for us and the whole of mankind. और वो पूरी मनुष्य जाति और हमारे लिए पाप बन गया He died. और वो मारा गया, He was crucified, उसे क्रूसित किया गया, but he rose again on the third day. पर वो तीसरे दिन मुर्दों में से And जी उठा he is seated in heaven right now. और इस समय वो स्वर्ग में बैठा है पिता के Hallelujah, परमेश्वर church. साथ। He is हालेलुया alive. कलीसिया। We worship a God that is alive. और हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। So the woman says, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." तो कहती है, स्वामी मुझे ये पानी दे कि फिर मुझे प्यास ना लगे और मुझे बार बार यहाँ पानी निकालने के लिए ना आना पड़े। Today, और आज if you hear his voice, अगर आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं if you know in your heart what I'm talking about, और अगर आप इस बारे में जानते हैं किसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, do not harden your heart. अपने हृदय को कठोर ना करें, Believe. विश्वास करें Receive the gift of eternal life. और उस वरदान को जो अनंत जीवन का है उसको ग्रहण करें। Because only when you know Jesus, और सिर्फ जब आप यीशु मसीह को जानते हैं true worship can arise. तभी सच्ची आराधना उठ सकती The है। expression of your heart, जो आपके हृदय के जताने का the तरीका है words of praise that you will speak, और जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे the स्तुति के, adoration you can give, और वो आराधना जो आप दे सकते हैं the aroma that will arise और वो जो खुशबू है वो उठेगी, will be true worship to God. वो ही सच्ची आराधना है। It is only possible और वो सिर्फ तभी संभव है when you believe जब आप विश्वास and करें when you receive. और जब आप ग्रहण करते हैं। Okay? Your spirit man comes alive. तो जो आपका आत्मा है वो वापस जीवित हो जाता I है। love worship today. We were singing about the love of God. और मुझे इतना अच्छा लगा आराधना में कि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहे The थे God we worship is one. और जिस हम परमेश्वर की आराधना करते हैं वो एक है, 3 in 1. वो तीन एक साथ है, एक, A mystery. और वो एक रहस्य है। Genesis 1 starts with in the beginning. और जो उत्पत्ति एक है वो शुरू होता है कि दुनिया के शुरुआत में क्या हुआ। John tells us in the beginning. और यूहन्ना हमें शुरुआत में ये बताता है, He is. वो है, He is the Alpha and the Omega. वो अल्फा और ओमेगा है, He will be. और वो होगा, He will always be. वो हमेशा रहेगा। True worship stems when we know this truth. और ये आराधना, सच्ची आराधना तभी आती है जब हम इस सत्य को जानते The हैं। source of true worship is God Himself. और जो स्रोत है सच्ची आराधना का वो परमेश्वर खुद है। Hear, O Israel, the Lord your God is one. और ए इज़राइल सुन, तेरा पिता परमेश्वर एक है। The Father is the author and initiator of worship. और जो पिता है वो बनाने वाला और शुरुआत करने वाला है आराधना का। No one comes to Jesus unless the Father who sent me draws him. और कोई भी यीशु मसीह तक नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है उसे निकट बुलाता है। That's why God the Father sent His Son to the world. और तभी परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा So that the love of God would be manifest among men. कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो प्रकट हो सके मनुष्य जाति के बीच में। The God who is Spirit reveals Himself to mankind through Jesus. और जो परमेश्वर जो आत्मा है वो अपने आप को प्रकट करता है मनुष्य जाति के सामने यीशु मसीह के द्वारा। Jesus is the exact representation of the Father. और यीशु मसीह बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिता है। So the source of our worship is God. हमारी जो स्रोत है आराधना का वो परमेश्वर है। The object of our worship is the Father. और जो हमारे क्या कहते हैं चीज़ है आराधना की वो है हमारा पिता। Okay? And God has drawn us to Himself. और जो पिता है उसने हमें अपने निकट बुलाया है। True worship can only arise when God draws you. और सच्ची आराधना तभी आ सकती है जब परमेश्वर आपको बुलाता When है, you know His love.
जब आप उसके प्रेम को when you जानते हो receive that gift of salvation, और जब आप उस उद्धार के वरदान को ग्रहण you करते हो, begin to acknowledge that there is a God that is alive, seated, enthroned, available for me to go to. और आप देखते हैं कि एक परमेश्वर है जो सिंहासन पे विराजमान है, जिंदा है, जो मेरे लिए मौजूद है। Okay, and now Jesus talks about the location of our worship. और अब यहाँ पे वो उस जगह की बात करता है जहाँ हमें आराधना करनी है। The Most High God does not dwell in houses made by hands, as the prophet says. और जैसे कि भविष्यवक्ता कहते हैं कि जो सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हाथ के बनाए हुए घर में नहीं वास करता, Heaven is my throne, और स्वर्ग मेरा सिंहासन है earth is my footstool. और पृथ्वी मेरी पैरों की चौकी है। God asks, what kind of house will you build for me, says the Lord? और परमेश्वर कहता है कि किस प्रकार का घर तुम मेरे लिए बना पाओगे, What is the place of my rest? और वो कौन सी जगह होगी जहाँ मैं आकर ठहरूंगा। Did not my hand make all these things? कि क्या मेरे हाथों ने इन सारी चीज़ों की रचना नहीं की है। So when God is saying that you will neither worship on this mountain nor on that, but my worshippers will worship in spirit and truth. और जब Some- परमेश्वर Yeah. कहता है कि मेरे जो आराधक हैं वो इस पर्वत या उस पर्वत पे आराधना नहीं करेंगे बल्कि वो सच्चाई और आत्मा में आराधना देंगे, The location is changing now. और तो जो जगह है आराधना करने की वो यहाँ पर बदलती है। That Mount Gerizim was the mountain they used to speak blessing over the people. और वो पर्वत था गरिज़ाम का जहाँ से लोगों के ऊपर आशीष को बोलते God थे। commanded Jacob, go and speak the blessings of God. Gather your people and speak the blessings of God on that और mountain. परमेश्वर ने याकूब को आज्ञा दी थी कि जाओ और मेरे लोगों के ऊपर आशीषों को बोल। Jesus is meeting the Samaritan woman on that mountain. और परमेश्वर उस सामरी यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से इसी पर्वत पे मिलता And है। she's like, what am I supposed to do? Worship here? Where do I go? What needs to be done? और वो कहती कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे आराधना करनी चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए आराधना And so करने के he लिए। takes away the old sacrifices and the old ways of worship and he starts to say there is a new way. और वो पुराने तरीके और पुराने बलिदानों को हटाता है जैसे आराधना करने का, और एक नया तरीका बताता है। By his spirit. वो है उसकी आत्मा के द्वारा, Through his spirit. उसके आत्मा के द्वारा। Ephesians 1, और इफिसियों 13 to 14 says, when you believe, और वो कहता है कि जब तुमने विश्वास किया, you are marked with him, तुम पे उसका निशानी डाली गई, with a seal, एक सील के साथ, the promised Holy Spirit, जो है वाचा दिया हुआ पवित्र आत्मा, who is a deposit, जो तुम्हारे अंदर एक जमा पूंजी की तरह दिया गया है, guaranteeing कि वो तुम्हें इस बात की आश्वासन देता है our inheritance. कि जो हमारी जो आने वाली इनहेरिटेंस है या जो हमें विरासत में मिलेगा, Until the redemption of those who are God's possession. जब तक उनको छुटकारा ना मिल जाए जो परमेश्वर की अमानत है। That means until Jesus returns, कि जब तक यीशु मसीह आते हैं God is going to keep you. परमेश्वर आपको रखने वाला है। Your free gift of salvation आपका जो मुफ्त वरदान है उद्धार का, is guaranteed वो आपको गारंटी दे रखा because He है, has deposited क्योंकि वो आपके अंदर आपने the उसको जमा Holy कर रखा है। Spirit in you. वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है The वो जमा पूंजी है, third person of the Trinity. जो तीसरा व्यक्ति है उस त्रिएकता का। No one looks excited this morning. और कोई भी मुझे उत्साहित नहीं लग रहा है I इस mean, सुबह। the same power that raised Christ from the dead is sitting on within you. और जो वही सामर्थ्य जिसने यीशु मसीह को मृत्युओं में से जलाया वो आपके Someone अंदर say है। amen. कोई तो बोले आमीन। Thank you. You got to be excited about these things. We're not dead people. We're alive in the spirit this morning. और हम लोग मृत लोग नहीं है बल्कि हम जीवित हैं आत्मा में If परमेश्वर you की। believed, अगर आपने विश्वास किया if है, you received, अगर आपने ग्रहण किया है, that's what God's talking about. और यहाँ पे इस बारे में परमेश्वर यीशु मसीह बात करते हैं। The location of worship has now changed. तो जो जगह है आराधना करने की वो बदल चुकी है। It's not limited to Israel. और अब वो वहां तक सीमित नहीं है जहां तक इज़राइल है। We don't need to go to Israel to worship God. हमें इज़राइल जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को आराधना We देने don't की। need to go to a building to worship God. ना ही हमें किसी इमारत में जाने की जरूरत है We परमेश्वर don't need to को go to a cathedral to feel that we're close to God. हमें किसी कैथेड्रल जाने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर से नजदीक महसूस कर सकें, Because God and His Spirit is in you. क्योंकि परमेश्वर का आपके आत्मा आपके अंदर वास करता He है is the guaranteed deposit within us.
और वो नियुक्त दिया गया जमा पूंजी है आपके अंदर। You know the beauty about this new location? और आपको पता है क्या खूबसूरती है इस नई जगह के बारे में, Every tribe, कि हर एक जाति, every language, हर एक भाषा, every nation हर एक राष्ट्र, does not have to go to Jerusalem to worship, उन्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को आराधना देने के लिए, but they can sing, पर वो गा सकते they हैं, can clap their hands, वो अपने तालियां बजा सकते they हैं, can speak their language, वो अपनी भाषा बोल they सकते can हैं, raise a hallelujah वो हालेलुया का नारा उठा wherever सकते हैं, they are on this earth, वो जहां भी हो इस पृथ्वी पर, because God is spirit. क्योंकि परमेश्वर And his आत्मा है worshippers will worship him in spirit and in truth. और उसके आराधक आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करेंगे। That's the declaration of his word और ये एक घोषणा है उसके वचन की all over the earth. पूरे पृथ्वी पर। Right? It says in the beginning, and it ends in Revelation by saying, all the saints, all the elders, everyone will bow down, every knee will bow down. और प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहता है सारे संत, सारे लोग, सारे अपने घुटनों पर आएंगे। Okay? Every nation will one day confess that Jesus is Lord. और हर एक देश एक दिन अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही The प्रभु new है। way of worship. और यह नया तरीका आराधना देने Since का, the resurrection of Christ क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह exists पुनरुत्थानित all है over this earth और वो इस पूरी पृथ्वी पर है to glorify the name of the Lord. और हम सब इस पृथ्वी पर हैं कि हम परमेश्वर को आराधना दे सकें। So I want to conclude with 3 things. तो मैं 3 चीज़ों के साथ खत्म करना चाहती हूँ। Worship has 3 elements. तो जो आराधना है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। It's a posture. वो है पॉस्चर, Because we acknowledge God, क्योंकि हम परमेश्वर मानते हैं, because we receive salvation, क्योंकि हमने उद्धार को पाया है, now we understand the greatness of the Lord. तो हमें उसकी उस महानता के आगे खड़ा होना है। Now we acknowledge there is only one God, और हमें सिर्फ इस बात की अंगीकार करना है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है, one true King, वो एक ही सच्चा राजा, glorified, जो महिमा में है, resurrected, जो पुनरुत्थानित seated है on a throne in heaven, और वो सिंहासन पे बैठा है where स्वर्ग में, saints and elders and all bow down, angels bow down and worship जहाँ him. सारे संत, पुण्य और सारे फरिश्ते उसके आगे झुकते हैं They fall down and they say, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. और वो उसे दंडवत करते हैं और कहते हैं पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Holiness is not something our human minds can comprehend naturally. और पवित्रता एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो उसे सामान्य स्वाभाविक तौर से समझ सकता है। It takes revelation. वो हमें एक प्रकाशन की It जरूरत है, takes relationship. हमें एक रिश्ते की जरूरत है, It takes time हमें समय की जरूरत है to say, wow, this is the God we worship. कि हम कह सकते हैं वाह ये है वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। So it's a posture. वो एक आसन है, It's a stance. वो एक तरीका है। We can do what Psalm 47 verse 1 says. We can clap our hands because for the joy of our salvation. और जैसा कि भजन संहिता 47 कहता है कि हम अपने उद्धार के आनंद के तालियां बजा सकते हैं We can shout out with a voice of triumph. और Psalm हम 47:7. विजय की घोषणा कर सकते हैं चिल्लाकर। We can spread our hands towards God to acknowledge His sovereignty. और हम उसके और अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं कि उसकी प्रभुता सब पर है। Isaiah 1 verse 15. और यशायाह 1 उसका 15 कहता है The attributes and knowledge of God now take on physical, verbal responses in worship. और जो परमेश्वर का चरित्र है, जो उसके गुण हैं, वो अब हम देख सकते हैं जब हम अपने शब्दों के द्वारा उनका वर्णन करते हैं। Our preaching becomes worship. जब हम बोलते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो हमारी Our आराधना हो jobs जाती है। become worship. हमारे जो कार्य हैं, हमारी नौकरी Our आराधना बन जाती lifestyle becomes है, worship. हमारे जीवन शैली आराधना बन Because जाती we're है। not living for someone dead, we're living for someone in eternal hope. और हम किसी मृत्यु परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि एक हमेशा की जो आशा है हम उसके लिए जी रहे हैं। This is temporary. और ये सब है, ये सब चला जाएगा। We're worshiping the one that is going to come, हम उस परमेश्वर की आराधना करें जो आने वाला है, the one that is, जो परमेश्वर है, the one that will always वो be. परमेश्वर जो हमेशा रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Our colleges become mission fields. और जो हमारे कॉलेज है वो हमारी मिशन फील्ड बन Our जाते हैं, schools become mission fields. हमारे स्कूल
स्कूल मिशन फील्ड बन जाती Because है। we have one that we're going to one day and he's going to ask us, what did you do? Did you know about me? और हम एक किसी को जानते हैं जिसके पास हम जाएंगे और वो हमसे लेखा लेगा कि तुमने क्या मेरे बारे में बताया। We put no confidence in the flesh, और हम अपने शरीर में कोई भी भरोसा नहीं रखते, but we serve God by his spirit. बल्कि हम उसको सेवा देते हैं आत्मा के द्वारा। A posture. एक आसन है। The second thing I want to tell you और जो about दूसरी worship चीज है आराधना के बारे में is it's an offering. कि वो एक दान है। In the Old Testament, they brought an offering. पुराने नियम में वो एक दान लेकर They आते had थे। specific offerings. उनके लिए एक खास दान होता था। Some cultures, we know, they bring offerings और हम कुछ संस्कृतियां जानते हैं जहाँ पे दान लेकर आया जाता है, in a self-seeking way, पर कुछ अपने लिए खोजते हुए हम आते हैं। right? But here, when we offer ourselves, पर we are यहाँ- offering it in view of God's mercy. और पर जब यहाँ पे हम अपने आप को दान देते तो हम उस दृश्य के सामने देते हैं कि परमेश्वर कितना करुणा में है। We deserve death. हम सब मृत्यु के भागी हैं। The Son came and took death on his life और जो वो पुत्र है वो आया और उसने मृत्यु अपने ऊपर ले so ली that today we can stand कि आज हम खड़े हो in सके the presence of God परमेश्वर की and we उपस्थिति can में, enter in और हम उसमें प्रवेश कर सकें in view of his mercy. कि हम देख सके कि उसकी करुणा We कितनी बड़ी। offer our bodies हम अपने शरीरों को एक बलिदान के रूप में देते हैं, as a living sacrifice, एक जीवित बलिदान के रूप में, holy, पवित्र, pleasing परमेश्वर को to the भाता God. हुआ। This is your true and proper worship. और ये Romans 12 तुम्हारी verse 1. सच्ची और सही आराधना है। Remember the temple क्या आपको मंदिर याद है? was a place? एक जगह थी। You are the offering now. अब आप एक बलिदान You हैं। are the temple now. अब आप एक मंदिर हैं। You are the place of worship now. अब आप वो जगह है आराधना We की। are the church and we are here gathered to worship Jesus. और हम कलीसिया और हम यहाँ पर सम्मिलित हैं कि It's हम not about परमेश्वर the को आराधना building. दें। It's not about the building. और ये इमारत के बारे में नहीं है। Okay, I want to say one thing. और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, When we offer our bodies to God, जब हम अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए देते when we हैं sing these songs in worship, और जब हम ये गीत गाते हैं आराधना में, our words to God matter. हमारे जो शब्द है परमेश्वर के लिए वो मायने रखते So I हैं। want to say, be careful. और क्या कहते हैं, सुलेमान ऐसा कहता है कि ध्यान रखना। Now, I heard this that in the book of Ecclesiastes, और मैंने सुना है कि जो सबोपदेशक की जो किताब है, there is an angel that records everything we say. एक फरिश्ता है जो हर एक चीज लिखता है जो हम बोलते हैं, One day we're going to have to answer for it. और हमें एक दिन उसका लेखा भी देना पड़ेगा। So don't say something you don't mean to God. और ऐसा कुछ ना बोले परमेश्वर को जिसका कोई मतलब ना हो आपके लिए। Think. आप सोचें Use the think strategy that Abhishek gave us. और वो चीजें हम Dr. Abhishek काम gave us. डॉक्टर अभिषेक ने जो हमें चीजें सिखाई हैं उसको काम में लें। You have to be sincere before God. हमें परमेश्वर के सामने ईमानदार रहना है। David wrote, "Where can I hide from your presence?" और दाऊद कहता है कि मैं तेरी उपस्थिति कहाँ छिप सकता हूँ। When we offer ourselves to God, जब हम अपने आप को एक बलिदान के रूप में देते हैं it's परमेश्वर based को, on our covenant relationship with God. और वो इसके ऊपर निर्धारित है जो हमारी प्रतिबंधित हमने क्या कहते हैं वो रिश्ता है परमेश्वर के साथ। The word for covenant is commitment. और जो क्या कहते हैं वाचा का अर्थ है प्रतिबंधित होना। One thing we have in our serving team and we commend them for is their commitment. और एक चीज जो हमारी सर्विंग टीम के अंदर है वो है उनका प्रतिबंधित होना। It took some time to build this value. और हाँ, कुछ समय लगा कि हम इस मूल को समझें। And we said to them, you know, before you even think about us, we want you to think about God because you're committing to Him. और हम ये कहते हैं कि आप इससे पहले हमारे बारे में सोचें, आप परमेश्वर के बारे में सोचें क्योंकि आप उससे प्रतिबंधित They've हैं। done a great job. और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा है। So a life that is in the covenant relationship with God और एक जीवन जो परमेश्वर के साथ एक प्रतिबंधित रिश्ते is में होता है, committed to Him, जो उससे प्रतिबंधित रहता है acknowledges Jesus' sacrifice on that cross, और वो मानता है कि वो परमेश्वर का एक बलिदान है उस क्रूस पर, and God is committed to you. कि परमेश्वर आपसे प्रतिबंधित You है। know, I'm only here in Dehradun because I said to God one day in worship, I'll go wherever you send me, Lord. और आज मैंने यहाँ देहरादून में, क्योंकि एक दिन मैंने आराधना में परमेश्वर से बोला था कि परमेश्वर मैं वहाँ कहीं भी जाऊंगी जहाँ तू मुझे भेजेगा। I want to make your name famous. Give me opportunities to just tell of your word and tell the people about you. मैं आपके नाम को प्रचलित बनाना चाहती हूँ। आप मुझे वो सारे अवसर दे कि मैं आपके बारे में लोगों को बता सकूं। And that was in Dubai. और अब क्या ये दुबई है?
Yeah, and I said this when I was in Dubai, और ये मैंने तब बोला था जब मैं दुबई में थी, when I was single. जब मैं अकेली थी. Then I married Pankaj, फिर मेरी शादी हुई पंकज से. and then he made me travel half of India, और all the फिर way from उन्होंने the मुझे south to the आधा north. भारत घुमाया. Okay, and then I'm like, oh, again, but I'm like, no, but I said those words to Jesus. और मैं कहती थी मैं नहीं कर सकती, पर मैंने कहा नहीं, मैंने वो शब्द कहे हैं परमेश्वर को. I could have said no, और मैं ना कर सकती थी, but I don't want to miss out on God. पर मैं परमेश्वर से नहीं चूकना I want to चाहती be हूँ. accountable नहीं तो मैं एक दिन लेखा दूंगी, because I worship a God that's real. क्योंकि मैं एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करती I हूँ. value what I worship. और मैं मूल्य जानती हूँ उस चीज का I take जिसको मैं आराधना देती हूँ. responsibility for the words I speak. और मैं जिम्मेदारी देती हूँ उन शब्दों की जो मैं बोलती हूँ. Now, during worship और आराधना के समय this morning, इस सुबह I just felt while we were singing this song, I can't remember the song, I just felt like there was a moment I wanted to bring this up because God was putting on my heart there might have been words some of us have spoken. और क्या कहते हैं, हम जब आराधना कर रहे थे और एक गीत चल रहा था तो मेरे मन में आया कि परमेश्वर डाला कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने परमेश्वर को बोले होंगे. It may be also to our brother or sister और शायद वो हमने अपने भाई बहनों से बोले होंगे, or to our husband or spouse. अपने क्या कहते हैं जीवन साथी से बोले होंगे. And we may have not meant it, और शायद हम उसके मायने नहीं समझते थे, but because our hearts were troubled, क्योंकि हमारा हृदय विचलित था, we may have said some words. हमने कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे. I felt like those words were words that were stopping us from worshiping God. और वो ऐसे शब्द हैं जो हमें रोकते हैं परमेश्वर को आराधना देने से. And I felt like some of us may need to seek the Lord for forgiveness. और हम में से कुछ हैं जिन्हें परमेश्वर की माफी को खोजने की जरूरत Remember what है. he says in the Bible, before you come to worship, if you hold anything against anyone, settle those accounts. और कहता है कि जब तुम आराधना करने आओ उससे पहले अगर तुम्हारे हृदय में कोई भी चीज़ है किसी को लेकर, तो उस सारी चीज़ों का लेखा जोखा करके आओ. The offering you bring. और जो दामिल होगा. I think of Divan when he comes some Sunday mornings and he's done a night shift and he's here. और जो दीवान है वो जो सुबह आते हैं संडे मॉर्निंग को, वो एक नाइट शिफ्ट करके आते हैं. Ashima, आशिमा, those that work in shift work and yet they come on a Sunday morning. और जो शिफ्ट में काम करते हैं रात की और फिर भी संडे की सुबह आते Well हैं. done. Your worship is pleasing to और God. परमेश्वर उस चीज को देखकर बहुत ही खुश होता है. Sometimes sacrifice involves time. और कई बार जो हमारा बलिदान है वो समय का होता है. Sometimes it involves giving up what friends want you to go to. और कभी कभी होता है कि हम अपने दोस्तों को छोड़कर हमें आना पड़ता है जिनके साथ हम जाना चाहते हैं. There is a sacrifice involved in worship. और आराधना में हमेशा एक बलिदान शामिल होता Remember, है. in light of God's sacrifice, और परमेश्वर की नज़र में वो जो बलिदान है, what are our sacrifices really? जो परमेश्वर का बलिदान है उसके आगे हमारा बलिदान क्या ही है. When you offer yourself, मधुर मधुर महक के समान हो जाते हैं परमेश्वर के आगे. offering ourselves to Christ, कि हम अपने आप को परमेश्वर को दे रहे हैं. and it spreads. It spreads. That's और वो incense धीरे fills धीरे the वो room. It जो spreads. वो खुशबू है वो फैलने लगती है. And those that are lost notice. और जो लोग खोए हुए हैं वो वापस आने लगते हैं. They notice your offering. वो देखते हैं, वो जानने लगते They हैं, notice your worship. वो नोटिस करने लगते हैं आपकी आराधना को. And so that is our true worship. और ये हमारी सच्ची आराधना है. I want to leave you with those three things. और मैं आप सबको इन तीन चीज़ों के साथ Posture, जो है पॉस्चर यानी कि आसन, sacrifice, और दूसरा है बलिदान, offering. ऑफरिंग, तीसरा All है of दान. these make it true to the Lord. Make it true worship to the Lord. और ये तीनों चीज़ें मिलकर परमेश्वर के लिए एक सच्ची आराधना को उत्पन्न करती हैं. Amen. Wow. Were you blessed this morning? और क्या आप लोग आशीषित हुए इस सुबह? Can we give a clap to God for क्या हम Tressa? परमेश्वर को आराधना तालियां बजा सकते हैं ट्रेसा के लिए? What an amazing message. और क्या ही अद्भुत संदेश था. You know, Jesus wants to offer a living water. और यीशु मसीह हमें जीवित जल देना चाहते हैं That will quench your thirst. जो आपकी प्यास को बुझा सके. Lust will never quench your thirst. और वासना कभी आपकी प्यास को नहीं बुझाएगी.
Earning money will never quench your thirst. और पैसा कमाना कभी आपकी प्यास को नहीं बुझाएगा। Fame will never quench your thirst. जो प्रचलित होना है वो आपकी प्यास को कभी नहीं बुझा सकता, But Jesus will quench your thirst. पर जो यीशु मसीह है सिर्फ वही आपकी प्यास को बुझा सकता है। We are worshiping God who is real God. और हम उस परमेश्वर को आराधना दे रहे हैं जो सच्चा परमेश्वर है। You know, some of the things what Teresa shared was so rich to the soul. और कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रेसा ने बांटी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों से भरी हुई थी हमारे प्राण के लिए। Worship will cost us. और जो आराधना है वो उसकी एक कीमत देनी पड़ेगी। In fact, Bible says we are living sacrifice. बल्कि वचन ऐसा कहता है कि हम एक जीवित बलिदान हैं। We are living for Jesus. हम यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। We will know the commandment, love your Lord your God with all your heart. और हम उस आज्ञा को जानते हैं, परमेश्वर को अपने पूरे मन से प्रेम करो। Just knowing the commandment will not make us worshippers. और सिर्फ उस आज्ञा को जानना हमें आराधक नहीं बनाता। Like they knew all the commandments, जैसे वो लोग भी सारी आज्ञाओं को जानते थे, yet they failed to worship God. और फिर भी वो असफल रहे परमेश्वर को आराधना देने में। In fact, one point God says, please go and stop them. और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने कहा कि उन्हें जाके रोक दो, They are making noise. वो सिर्फ आवाजें बना रहे हैं, They are not worshiping वो me. आराधना नहीं कर रहे हैं। Will God would say like that to us? क्या परमेश्वर हमें भी ऐसा बोलेगा? We worship God in truth. क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना सत्य में करते हैं। We are not perfect people, और हम लोग सिद्ध लोग नहीं हैं, but we get to be perfect under the precious blood of Jesus. पर हमें सिद्ध होने के लिए मिलता है उसके उस कीमती लहू के अंदर। Jesus makes us perfect यीशु मसीह हमें सिद्ध बनाते when we हैं come openly to Him, जब हम खुलकर उसके सामने आते हैं, when we acknowledge every dark areas of our life, जब हम मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ क्षेत्र हैं जो अंधकार में हैं, and we say to Jesus, Jesus, I need help. और हम कहते हैं प्रभु हमें इस जगह पे आपकी जरूरत है। Not live a cover up, और एक छुपी हुआ जीवन नहीं, not live a denial. और ना कि झूठ का Oh, जीवन, I'm all good. अरे मैं अच्छा हूँ, That's pride. वो घमंड है। But repentance पर पश्चाताप करना is a heart of humility. वो एक हृदय है दीनता से Saying भरा to हुआ। God, Lord, I'm not perfect. ये कहना कि परमेश्वर मैं सिद्ध नहीं Lord, हूँ, I need help. मुझे आपकी जरूरत I है, repent, Lord. और मैं पश्चाताप करता हूँ। And you know, you can have a difficult week. Throughout the week, we were not even pleasing God. और शायद आपका पूरा सप्ताह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा हो, आपने परमेश्वर को बिल्कुल भी आनंदित ना किया हो, But one prayer of that truth and repentance can make you perfect in Jesus. पर वो एक प्रार्थना जो सत्य में है और पश्चाताप की है, वो हर एक चीज़ बदल देगी मसीह के I सामने। was just thinking this, church, और मैं इस बारे में सोच रहा था कलीसिया, that the God in the Old Testament जो परमेश्वर है पुराने नियम का, was so serious वो इतना गंभीर था of how one should worship Him. कि एक व्यक्ति को कैसे उसको आराधना देनी चाहिए। Is the God of New Testament has become too casual? क्या ये जो परमेश्वर है जो नए नियम का है वो अब क्या गंभीर नहीं रहा? Think about that. आप इसके बारे में सोचें। Has God of the New Testament become so casual? क्या जो नए नियम का परमेश्वर है वो गंभीर रहा ही नहीं? I don't know about you, but these things really makes me think. मुझे आपके बारे में पता, पर मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचता हूँ, Makes me pursue God. और वो मैं इसकी वजह से मैं परमेश्वर के को और Makes me खोजता हूँ go after Jesus, how much I need Him. कि मैं यीशु मसीह के पीछे और जाऊँ कि मुझे उसकी और ज़रूरत है। We all are imperfect people, और हम सब वो लोग हैं जो सिद्ध नहीं हैं, but God is there to help us. पर परमेश्वर है जो हमारी मदद करता है। Amen. आमीन। Would you like to stand? क्या आप लोग खड़े होना चाहेंगे? Just we sing a short chorus and we respond to God. God, I am here to worship you, Lord. और हम एक छोटी सी कोरस गाएंगे और हम प्रति उत्तर देंगे कि परमेश्वर मैं यहाँ पे आपको आराधना देने के लिए We हूँ। are known to be worshippers of God. और हमें बुलाया जाता है परमेश्वर के आराधक कहकर। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु।